Hello students, today we will study enzymes. We will start with enzymes. This is part of your paper number CC7, Unit 4. So you might be familiar with this term enzyme, and you have heard this term many times. So what are these? So enzymes are basically proteins that act as biological catalyst. Okay, that act as biocatalysts. Catalyst जो है दो तरह के हो गए, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. ओके, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट फिर दो तरह के हो गए आपके. एक तो जो एंजाइम्स है वो, और राइबोजाइम. एंजाइम प्रोटीन्स है, राइबोजाइम राइबोसोमल आरएनए है. ओके स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट है. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हेलो. यस सर, आ रही है. ओके. सो देखिए, अभी आपको बना बनाया नोट नहीं मिलेगा, मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा. ओके, यहीं पर लिखते भी जाऊंगा. आप लोग बाद में वीडियो को देख करके फिर से रिपीट, अभी ध्यान दो समझने पर, रिपीट देख करके पॉइंट वाइज आप इनके नोट्स बना लेंगे. ओके, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस खत्म करना है. तो अगर मैं नोट बनाने में टाइम लगाऊंगा तो फिर आपका पोर्शन कम कवर होगा. प्लस ये जो वीडियोस हैं, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ, ये वीडियोस जैसे पहले तुरंत अपलोड कर देते थे, अभी थोड़ा टाइम लेके अपलोड होगा क्योंकि मैं अभी छुट्टी पर हूँ. तो जब मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगा तो मैं सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा एक साथ, तो कुछ दिन के बाद आपको अवेलेबल हो जाएंगे. ओके, तो आइए टॉपिक पर आते हैं. स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी? यस सर. Yes, sir. So what are enzymes? These are proteins that act as biocatalysts. Okay, and what biocatalyst does? These are the substances or chemical compounds which accelerate a chemical reaction, which accelerate the rate of chemical reaction, which enhances the rate of chemical reaction. Okay, so the molecules upon which enzymes may act are called as substrates. क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं, जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू प्रोडक्ट्स. सबस्ट्रेट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो ये सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं. ओके, तो ठीक है. एंड इसके बाद एंजाइम इसको सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, ऑलमोस्ट ऑल इन द सेल, they need enzyme catalysis in order to occur at fast rate, because it has to sustain life. Okay, to sustain life, enzymatic metabolic processes in the cell should happen at very fast speed. So for that, enzyme catalysis is needed. Okay, metabolic pathways depend upon enzymes to catalyze individual
स्टेप्स, पॉइंट बनाते जाना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, मेटाबॉलिक पाथवेज डिपेंड्स अपॉन द एंजाइम्स टू कैटलाइज इंडिविजुअल स्टेप्स। द स्टडी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट। Okay, so there are more than 5,000 different type of enzymes known to us. Okay, and all these are catalyzing different biochemical reactions. Other types of biocatalysts are catalytic RNA molecules called ribozymes. Okay. Next point. 1 second. Three-dimensional structure of an enzyme, as this is a protein, is important for its function. And the peculiar property of the enzyme is its specificity. Okay, enzyme is specific for its substrates, specific for the reaction which it is catalyzing. Specific means, okay, they are specific. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. So their three-dimensional structure is important. Like all catalysts, enzyme also increase the reaction rate by lowering its activation energy. For every reaction to occur, an activation energy barrier is there. So catalyst function is to lower this activation energy barrier so that reaction occurs at a very fast rate. But so enzymes also do this. It lowers the activation energy. Some enzymes can make their conversion of substrate to product occur many million times faster. अगर एंजाइम present ना हो तो the same food which you are having will take 50 years to get digested, जो कि आपका 3 घंटे में हो जाता है खाना खाने के बाद. And all this is because of enzymes. So you can imagine how fast the enzyme are making these chemical reactions. एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है आपका एंजाइम कितना फास्ट करता है रिएक्शन को. एंजाइम का नाम है ओरोटिडीन 5-फॉस्फेट. यह एंजाइम है जो डिकार्बोक्सिलेशन करता है आपका ओरोटिडिनाइलेट ओरोटिडाइलेट का. ठीक है, ओरोटिडाइलेट जो है आपका एक यूरिडीन पायरिमिडीन सिंथेसिस पाथवे में यूरिडीन है, सॉरी यूरेसिल है.
हाँ, यूरेसिल तो नाइट्रोजनस बेस है, और वो जब नाइट्रोजनस बेस कंबाइंड विद द राइबोस डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट, तो इसको यूरिडीन कहते हैं। जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उसी तरह यूरिडीन। तो इसके सिंथेसिस का पाथवे है, जिसमें डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को दिस एंजाइम कैटेलाइजेज, और यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बनाता है। किससे? ओरिटिडीन मोनोफॉस्फेट से, OMP से UMP। तो इस तरह से यह न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट सिंथेसाइज होता है। फिर इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा बाय अदर एंजाइम, तो इट विल बिकम UTP। तो इसको बनाने के लिए ये एंजाइम इज इम्पोर्टेंट, ओरिटिडीन 5-फॉस्फेट। अगर यह एंजाइम ओरिटिडीन 5-फॉस्फेट तो सबस्ट्रेट है डीकार्बोक्सिलेज। This is the complete name of the enzyme. If this enzyme is not present, the same reaction, this reaction will take millions of years to occur. But in the presence of this enzyme, this reaction takes place in seconds. ओके, तो एंजाइम कहने का मतलब, एंजाइम जो इसलिए रिक्वायर्ड है कि ये बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन रिएक्शंस को दे एक्सीलरेट इट। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो क्योंकि ये कैटलिस्ट सॉरी सर, सर एक सवाल पूछना था सर। सर जिसको 3 पेपर में क्रॉस लगाए सर, वो प्रमोटेड क्योंकि कैटलिस्ट एंजाइमेटिक रिएक्शंस में कंज्यूम नहीं होते हैं, इसलिए ये बायोकैटलिस्ट भी कंज्यूम नहीं होते हैं, एंजाइम भी कंज्यूम नहीं होते हैं, राइबोजाइम्स ये सब कोई कंज्यूम नहीं होते हैं। ओके, आफ्टर द रिएक्शन द अमाउंट ऑफ और द कंसंट्रेशन ऑफ दीज कैटलिस्ट रिमेन्स सेम। नेक्स्ट पॉइंट, enzymes differ from most other catalysts by being much more specific. Enzymes, biocatalysts, particularly enzyme, this is much more specific. केमिकल कैटलिस्ट तो एक क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकते हैं। जैसे कोई कंडेंसेशन रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला कैटलिस्ट है, तो बहुत तरह के कंडेंसेशन रिएक्शन जो है उन सबको कैटलाइज कर देंगे। बायोकैटलिस्ट एंजाइम प्रोटीन्स हैं, ये स्पेसिफिक हैं, हर एक रिएक्शन के लिए अलग एंजाइम है। ओके, डजंट मैटर कि उस रिएक्शन का मैकेनिज्म, मान लो कि कंडेंसेशन है या डिकार्बोक्सिलेशन है। डिकार्बोक्सिलेशन के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप पढ़े हैं यूरिया साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन मैकेनिज्म सेम है डिकार्बोक्सिलेशन, लेकिन एंजाइम सब अलग अलग है। ओके, राइबोजाइम्स, ये राइबोसोमल आरएनए हो गया आपका राइबोसोम में। ओके, लार्जर सब यूनिट में, लार्जर सब यूनिट ऊपर है, स्मॉलर सब यूनिट नीचे है। यहाँ पर मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, इसके अंदर आपका राइबोसोमल आरएनए है। दैट राइबोसोमल आरएनए इंटरेक्ट विथ दिस
messenger RNA and it is forming protein. Okay, nascent polypeptide का सिंथेसिस हो रहा है, रीडिंग द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। तो आप देखिए कि इसके लिए सबस्ट्रेट जो है वो कहाँ स्पेसिफिक है, एनी टाइप ऑफ मैसेंजर आरएनए, एनी मैसेंजर आरएनए किसी भी जीन का, उस सबको सेम राइबोजाइम आपका जो आरएनए है वो लार्जर सब यूनिट में शायद 27S वाला है यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में 20, आई एम नॉट श्योर, देख लोगे तुम लोग। ओके, अब राइबोसोम में और भी राइबोसोमल एंजाइम होते हैं, सिर्फ एक ही नहीं होता है, बड़ा वाला जो है ये इसका बात किए तो ये राइबोसोमल आरएनए जो है सभी तरह के मैसेंजर आरएनए, सभी तरह के प्रोटीन सब इससे बन रहे हैं, तो यहाँ स्पेसिफिसिटी नहीं है, ठीक है। इसलिए एंजाइम को कहा जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है। एंजाइम का एक्शन आप इनहिबिट कर सकते हैं, इसको कैटालिसिस को आप रोक सकते हैं। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी अफेक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स such as, and those molecules are called as inhibitors. Inhibitors are molecules that decrease enzyme activity, and activators are the molecules that increase enzyme activity. Okay, many drugs, therapeutic drugs, वो नशा वाला ड्रग नहीं, therapeutic drugs and poisons are enzyme inhibitors. Okay. And enzymes activity decreases markedly outside its optimal temperature and pH bracket. Okay, and if you expose this enzyme to the extremes of the temperature for a longer period of time, many enzymes will may lose permanently their function, their tertiary structure, and they will get denatured permanently. Now, denatured means permanently it is losing its function. But कब, जब आप उसको एक्सपोज करेंगे एक्सेसिव हीट में, तब, या एक्सट्रीम ऑफ पीएच, so they will lose their structure and catalytic properties. Okay students, इतना समझ में आया आपको? Yes, sir. Okay. Next point. Enzymes' catalytic activity depends upon the integrity of their native protein conformation. Protein conformation. If an enzyme is denatured or dissociated into its constituent subunits, catalytic activity is lost. और अगर और ज्यादा उसको एक्सट्रीम ट्रीटमेंट दिए एंजाइम को, if you break the enzyme into its component amino acids, its catalytic or activity is always lost. वो तो लॉस उसका होना ही है। इसलिए चूंकि अमाइनो एंजाइम्स जो है प्रोटीन्स हैं, इसलिए इनका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी।
Okay. Next point. Okay. This is all I'm explaining you the in general about the enzymes. Giving you the exposure of the enzymes, what are the enzymes and their properties. Then I will come on classification and nomenclature. Enzymes, like other proteins, have a wide range of molecular weights. Some enzyme may be either 12 kD, as small as 12,000 Dalton molecular weight, or some enzymes may be over 1 million Dalton in molecular weight. Some enzymes require, next point, some enzymes require no chemical groups other than their amino acids residues for their activity. कहने का मतलब एंजाइम अकेला सफिशिएंट है टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटी. Enzyme alone is sufficient to perform its activity and function. But some enzymes are having this, they can become but some enzymes require require an additional chemical component. ठीक है ना, एक पॉइंट में लिखोगे, many enzymes do not require other chemical groups for their activity, but some enzymes require other chemicals, यानी enzyme plus other chemicals or compound, then the activity will be there. These other chemical compounds which are helping or accessory in function, and it is complementing the enzyme's function and essential for the enzymes to function, these other chemical compounds, because this chemical compound is not protein, enzyme is protein. So one has to look upon this. What are these other chemical compounds? These may be inorganic or organic. And this other chemical components, सबको collectively we call it as cofactor. Okay. So this chemical component is called as cofactor. The cofactors may be inorganic ions, such as iron, ferrous state में magnesium, manganese, zinc, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सेलेनियम एटसेट्रा. ये चाहिए, या
complex organic molecule or metallo-organic molecule, and that one is called as coenzyme. कोफैक्टर्स ये अदर केमिकल कंपाउंड या तो इनऑर्गेनिक आयन हो सकते हैं, केमिकल कंपाउंड नहीं, अदर केमिकल, क्योंकि ये तो कंपाउंड है नहीं, केमिकल. सो दीज अदर केमिकल्स आर कैन बी इनऑर्गेनिक आयंस. पूरे अदर केमिकल ग्रुप को हम कहेंगे कोफैक्टर्स. ठीक है. कोफैक्टर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज ऑर्गेनिक आयन एंड अनदर वन इज coenzyme. These coenzymes are basically complex either organic or metallo-organic molecule. These are coenzymes. आ रहा है समझ में स्टूडेंट? कहने का मतलब सारे कोएंजाइम जो हैं वो कोफैक्टर है. All coenzymes are cofactors, but not all cofactors are coenzymes, because some cofactors are inorganic ions too. आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? यस सर. तो ऑर्गेनिक पार्ट को कोएंजाइम कहेंगे. ऑर्गेनिक पार्ट तो ये एंजाइम ही ना है. मेन एंजाइम भी तो ऑर्गेनिक पार्ट है. जो अदर केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, कुछ एंजाइम तो अकेले काम कर सकते हैं, ओके, एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, बट सम एंजाइम्स रिक्वायर अदर केमिकल्स फॉर देयर एक्टिविटी. ओके. इन द एब्सेंस ऑफ दिस केमिकल, एंजाइम कैन नॉट परफॉर्म द एक्टिविटी. सो दिस अदर केमिकल ग्रुप कलेक्टिवली, पूरा के ये जो ग्रुप है एंजाइम के अलावा जो लग रहा है, उस सब को हम जितने भी तरह के उन सब को कोफैक्टर्स बोलते हैं. कोफैक्टर्स भी दो तरह के हैं, इनऑर्गेनिक आयंस. ये सब अभी हम आपको बताएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. और वो कोफैक्टर्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं या मेटेलो ऑर्गेनिक हैं, जैसे हीम ग्रुप. चूंकि हीम ग्रुप तो प्रोस्थेटिक हो जा रहा है, इसको कोफैक्टर नहीं बोल सकते हम, क्योंकि दिस इज टाइटली अटैच्ड विद द प्रोटीन. तो और वो हीमोग्लोबिन एंजाइम भी नहीं है. जैसे कोफैक्टर का एग्जांपल हो गया FAD. सपोज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए लगेगा ये कोफैक्टर, तभी एंजाइम विल परफॉर्म इट्स एक्शन. ओके. तो दिस इज बेसिकली क्या, ऑर्गेनिक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक है, कंपाउंड है ये. ओके. सो दिस इज आपका दिस FAD, NAD, ऑल दीज आर कोफैक्टर्स. और ये आप हम जो विटामिन्स लेते हैं, खा रहे हैं, particularly vitamin B complex, water soluble vitamin, folic, even folic acid also. These are precursors of these cofactors. आप इन विटामिन्स को डाइट से लेते हैं, फिर वो बॉडी में वो विटामिन्स कुछ तब्दील होकर के, कुछ चेंज होकर के, दे बिकम कोफैक्टर्स फॉर द एंजाइम्स.